Hello everyone, I am Rashmin. Welcome back to my channel Budding Gems. In the last video we have discussed about nutrition in animal. This chapter we were discussing, and we have discussed about digestion in human and digestion in ruminant. These two things we have discussed in the last video. Okay, so today we will be starting digestion in unicellular animal. We will be learning how digestion in unicellular animal takes place. Unicellular animals means what? Digestion is what? Same breakdown of food into simple soluble absorbable form, so that the body absorbs it. So that is digestion in unicellular animal. Unicellular means what? Unicellular. Uni means one. Cellular means cell, one cell, single celled animal. We are seeing the digestion in single celled animal. Single cell, example of single celled is what? Very common example is amoeba. So we will see how digestion in amoeba takes place. Okay. So this digestion is same as 5 steps process. 5 steps of nutrition are there, same as it's there in human also, it's there in ruminant also, same in amoeba also. It's 5 step process. That is, it's a basic 5 step. For nutrition, these 5 steps should be followed. That is ingestion, first to take the food into mouth. Then what? Digestion, that is breakdown of food. Then what comes? Absorption, assimilation. Assimilation is transport of nutrient to all the parts of body, and then egestion, removal of waste. These are the 5 steps which are there, which are common in all the organisms, whether it is unicellular organism, whether it is ruminant, that is herbivorous animal, or whether it is human. In each and every organism, the steps of nutrition are common for all. है ना? That is ingestion करेगा, then क्या होगा? Digest होगा, then absorb होगा, assimilate होगा, and then what will happen? Egestion. Egestion means removal of it. These are the 5 steps which are common. है ना? We have discussed these steps in detail in our last session. Okay. If you have not watched that video, go and watch, and then you will be understanding it completely. Okay. So let's start with the digestion in amoeba. Okay. Digestion in amoeba. It is very simple. Since if you have understood the digestion in these two, human and ruminant, it is very simple to understand. See, it is single cell. Single cell means what? Single cell से बना हुआ है. तो single cell से बना हुआ है, तो it does not have and amoeba lives in pond water. हाँ, pond पानी में रहता है. पानी में रहता है this amoeba, and it does not have any shape. No shape. Irregular shape है. Any shape. Okay. See, this is what amoeba is. है ना? Irregular shape है. It can change its shape. है ना? According to need. To capture the food, it will move this is called as pseudopodia. We will see. है ना? It will take the shape like this. Suppose here food is there. So it will take the shape somewhat like this. है ना? For movement, it will elongate this projection to move. है ना? So it does not have a proper shape, irregular shape. Okay. So what are the first of all we have to see कि what are the parts. Cell के parts क्या क्या है? See, this is cell membrane. This is a cell, single cell है. तो this is what? A cell, simple cell. Cell membrane है, cell का outer cover है. This is the outer covering, है ना? Outermost covering. So it is called as what? Cell membrane. Same as the जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, सेम इज द स्ट्रक्चर. सेल मेम्ब्रेन, दिस अंदर क्या होता है? वाटरी स्ट्रक्चर, वाटरी लिक्विड प्रेजेंट होता है. लिक्विड है ना, लाइक अ वाटर, है ना? तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? साइटोप्लाज्म. ओके, दिस इज सेल मेम्ब्रेन कवरिंग. अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, एंड दिस इज न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस होता है, this is what? Nucleus. है ना? Nucleus. Okay. And there are some vacuoles present. छोटे छोटे vacuoles present होते हैं. These are called as what? Vacuoles. These are vacuoles present. Okay. So this is the simple structure of cell. ये cell है, यही cell का structure है, and यही amoeba का structure है. Okay. सेल में जो हमारा सेल होता है उसमें vacuoles present नहीं होते हैं. Only cell membrane, cytoplasm and nucleus. Okay.
है ना। एंड ये एमीबा का सेल है, एमीबा का स्ट्रक्चर है। तो एमीबा में व्हाट इज दैट? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियस एंड दीज आर वैक्यूल्स। ओके, सो when this amoeba move, जो मूवमेंट होते हैं एमीबा के, तो वो मूवमेंट क्या करता, कैसे करता है? जो ये इलोंगेट स्ट्रक्चर है, दिस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, उसको इट मूव्स इस तरीके से मूव करता है कि दिस इट वांट टू मूव्स, सपोज एमीबा वांट्स टू मूव, तो इट इलोंगेट्स इट्स स्ट्रक्चर, दिस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर को ऐसे मूव करेगा कि उसको मूव करना है। हाँ, तो दिस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर एट दैट टाइम इज कॉल्ड एज सीडोपोडिया। सीडोपोडिया मीन्स व्हाट? इट वर्क्स एज लेग, उसके लेग के जैसा काम कर रहा है। तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर लेग, वो लेग की जैसा एक्ट करेगा एंड परफॉर्म करेगा, वॉकिंग, है ना, परफॉर्म करेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सीडोपोडिया। सीडो मीन्स व्हाट? फॉल्स। सी, ये इलोंगेटेड जो स्ट्रक्चर रहेगा ना, उसको क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया। Pseudopodia. Okay, this is called as pseudopodia. Why pseudopodia? Podia means leg, and pseudo means what? False, false leg. These are not proper legs, but it is used for movement. It is used for movement to perform the activities, है ना? It is used for movement. So legs का जैसा perform कर रहा है तो podia, and pseudo means false leg. Pseudopodia is also called as what? False leg. False leg. Okay, this is the structure of amoeba. अब नाउ सी, जब भी इंजेक्शन होगा जो 5 स्टेप्स न्यूट्रिशन के, हाउ डज इट परफॉर्म द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन? सपोज द फूड इज हियर, है ना, यहाँ पर फूड है, तो द एमीबा सेंस द फूड, इसको सेंस हो जाता है कि फूड इज प्रेजेंट, है ना, सेंस हो जाता है कि फूड इज प्रेजेंट ओवर हियर, तो वो इस तरीके से मूवमेंट करेगा कि इट विल इलोंगेट इट्स स्ट्रक्चर इन सच अ वे दैट इट विल टेक द फूड, इनगल्फ कर लेगा वो, है ना, उसको ट्रैप करेगा, फर्स्ट ट्रैप करेगा इस तरीके से, लाइक दिस, ये फूड है, इसको इस तरीके से समवट लाइक दिस ट्रैप करेगा एंड देन इनगल्फ कर लेगा। इनगल्फ मीन्स ले लेगा अंदर। ओके, इसको ट्रैप करेगा फर्स्ट आसपास से एंड देन उसको इनगल्फ कर लेगा। दिस इज हाउ द मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू दिस सीडोपोडिया, है ना। इट इज यूज फॉर मूवमेंट ऑल्सो, फॉर कैप्चर ऑफ फूड ऑल्सो एंड टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज, है ना, जो भी उसका नीडफुल एक्टिविटीज होगी तो परफॉर्म करने के लिए दिस सीडोपोडिया हेल्प्स, है ना, फॉर द मूवमेंट एंड फॉर कैप्चर ऑफ फूड, है ना। तो ये कैप्चर कर लिया फूड को, फूड्स कम इनसाइड, है ना, फूड अंदर आ गया। ओके, दिस इज इंजेस्टेड फूड। ये क्या है? इंजेस्टेड फूड, जो उसने इंजेस्ट किया। इंजेस्ट मीन्स क्या? टेक किया, लिया। ओके, तो ये इंजेस्टेड फूड अब किधर जाएगा? इट विल कम्स इन द वैक्यूल, जो वैक्यूल प्रेजेंट है, ये वैक्यूल जो प्रेजेंट है, इसके अंदर फूड विल एंटर इनटू द वैक्यूल, है ना। दिस वाज द वैक्यूल, एम्प्टी वैक्यूल, उसके अंदर क्या करा? फूड एंटर करा। ओके, नाउ डाइजेस्टिव एंजाइम, सेम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हैव टू टेक प्लेस, है ना। तो पहले इंजेशन हुआ, देन अब क्या होगा? डाइजेशन होगा। हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस? डाइजेशन कैसे होगा? ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? सम डाइजेस्टिव जूसेस। तो जो वैक्यूल की जो वॉल है, ये वैक्यूल, ये सपोज दिस इज वैक्यूल एंड दिस इज इंजेस्टेड फूड, इंजेस्ट किया हुआ फूड है। तो ये वैक्यूल की जो वॉल है, दे विल सिक्रीट सम एंजाइम्स, दे विल सिक्रीट सम केमिकल, है ना, टू डाइजेस्ट द फूड। ये फूड को क्या करने के लिए? ब्रेक डाउन करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए द वॉल ऑफ दिस वैक्यूल विल रिलीज सम, सिक्रीट सम एंजाइम्स। फाइनली द फूड विल गेट डाइजेस्टेड, जो कॉम्प्लेक्स फूड था, है ना, इट विल गेट डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस डाइजेस्टिव जूसेस, है ना, वो क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेशन के बाद में व्हाट प्रोसेस कम्स? एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड था, अब क्या करेगा? ये डाइजेस्ट हो गया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ क्या करेगा? यही वैक्यूल जो डाइजेस्टिव, जो वो है, जो एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट है, यूजफुल न्यूट्रिएंट, वो एब्जॉर्ब कर लेगा टू परफॉर्म अदर एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ भी होगी ना, यूनिसेलुलर है बट इट नीड्स टू ग्रो, है ना। तो टू अटेन जो भी उसका साइज है, टू अटेन दैट साइज इट नीड्स टू ग्रो। फॉर ग्रोथ व्हाट इट नीड्स? न्यूट्रिएंट। तो यहाँ से वो न्यूट्रिएंट आया, डाइजेस्ट हुआ एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट, एंड वो न्यूट्रिएंट किधर चले जाएगा? इसके साइटोप्लाज्म में चले जाएगा, टू एंड गिव्स टू ईच एंड एवरी पार्ट्स में वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होगा, है ना। तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्ब किया किसने? फूड वैक्यूल की ही वॉल ने एब्जॉर्ब किया। देन एसिमुलेट हुआ, मतलब पूरे हर जगह टू ईच एंड एवरी पार्ट वो न्यूट्रिएंट गया,
है ना. एंड जो वेस्ट बचा दैट हैव टू गेट इजेस्टेड, है ना. इजेस्ट होना चाहिए, एलिमिनेट होना चाहिए. तो इट विल ऑल्सो गेट एलिमिनेट फ्रॉम हियर ओनली. वैक्यूल विल एलिमिनेट दैट वेस्ट. वैक्यूल क्या करेगा, उस वेस्ट को एलिमिनेट करेगा एंड थ्रू सीडोपोडिया दैट विल कम आउट. थ्रू सीडोपोडिया क्या करेगा, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड था या जो वेस्ट था दैट विल कम आउट थ्रू दिस सीडोपोडिया. दिस इज हाउ दिस 5 स्टेप्स टेकन प्लेस. पहले क्या करा, इंजेस्ट हुआ, इंजेशन प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड. देन क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ. कैसे डाइजेस्ट हुआ, ये जो वैक्यूल था, वैक्यूल की वॉल्स ने क्या करी, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करी टू डाइजेस्ट द फूड. डाइजेस्ट होकर सिंपल फॉर्म में आ गया. देन एब्जॉर्ब हुआ. एब्जॉर्ब होने के बाद में क्या हुआ, पूरा न्यूट्रिएंट विल पास टू ईच एंड एवरी पार्ट, है ना. पूरे सेल इज, ऑल्दो इट इज यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल छोटा सा है, नॉट इवन नेकेड विद अवर आईज ऑल्सो, है ना. वी कैनॉट सी विदाउट, मीन्स डायरेक्टली वी कैनॉट सी. इट इज माइक्रोस्कोपिक, वी हैव टू सी इट थ्रू द माइक्रोस्कोप. तो बट उसका जो भी पार्ट है उस तक तो न्यूट्रिएंट जाना चाहिए ना. तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, एसिमिलेशन. देन क्या होगा, एसिमिलेट हो गया और जो वेस्ट बचा दैट विल गेट इजेस्टेड, दैट विल बी गेटिंग डिस्कार्ड. तो ये डिस्कार्ड हो गया. डिस्कार्ड मीन्स व्हाट, एलिमिनेट हो गया, इजेशन का प्रोसेस हो गया. तो दिस 5 स्टेप्स हैव टेकन प्लेस. ओके, दिस इज हाउ डाइजेशन इन अमीबा हैपेंस. ओके, अंडरस्टूड अप टू हियर. सो इट इज़ वेरी सिंपल. दोज 5 स्टेप्स यहाँ पर भी होगी एंड इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म होगी. एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस, इट इज़ वेरी सिंपल. सिंगल एक वैक्यूल ही तो है. वैक्यूल ने क्या करा, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज किया, डाइजेस्ट किया. वैक्यूल ने ही न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया एंड ट्रांसपोर्ट किया टू ईच एंड एवरी पार्ट. Okay, this is how digestion in amoeba takes place. Okay, so we have discussed the digestion of in 3 organisms, that is human also we have discussed, ruminant also discussed, and this was digestion in amoeba. Now we have to see the remaining part of the chapter was we have to see the effect of saliva on starch. Starch जो हमने खाया था, starch means what, carbohydrate, what we have eaten. उसके पर सलाइवा ने जो एक्ट किया था, कैसे सलाइवा ने एक्ट किया था, सलाइवा रिलीज व्हाट, salivary amylase. Salivary amylase we have seen in the last video. तो salivary amylase ने क्या करा था, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन किया था into simple sugar, not completely digested but partially digested. तो कार्बोहाइड्रेट have got converted into what, carbohydrate was broken down into what, maltose, है ना. तो that effect of saliva मतलब एक simple सा experiment है that we have to see. Okay, so we will start with that, है ना. Very simple experiment is given in your book. We will discuss it once. See, effect of saliva. Effect of saliva on starch. Starch is what, carbohydrate. Starch is the what, carbohydrate only, sugar, है ना. तो फॉर दिस इज एक्सपेरिमेंट यू हैव टू परफॉर्म इन योर लेबोरेटरी ऑल्सो, इन स्कूल ऑल्सो. तो वी विल सी के हाउ इट गोज. ओके, सो वी हैव टू टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स. दो वी हैव टू टेक 2 टेस्ट ट्यूब. इन 1 टेस्ट ट्यूब, दिस नेम इट एज A and this is as B. Okay, in the test tube what we have to add, we have to take, in the first test tube we will take only boiled rice. Over here we will take what, only boiled rice. We will take only boiled rice in this test tube, and here we will take cheeved boiled rice. Cheeved boiled rice. Okay, cheeved means what, चबा हुआ. चबा हुआ जो हम चीव करेंगे उसे हम टेस्ट ट्यूब B में लेंगे. Okay, so we will take 2 test tube like this. Okay, then we will add some water, some drops of water in both the test tube. ये boiled rice ले लिया हमने, है ना, ये cheeved boiled rice था. Okay, तो फिर उसके बाद में what we will add water to both the test tube. Then what we have to add, we have to add iodine solution. We will, ये water भी add कर लिया, है ना, and we have to add what, the main is iodine. We have to add iodine solution. Iodine का solution we will add to both the test tube. After some time, ये iodine का solution भी हमने ले लिया. Pour some drops of iodine solution. Okay, है ना. Don't go on drawing, only we need to understand things. क्या क्या हमने, in first test tube we have taken boiled rice, here we have taken cheeved boiled rice. दोनों में थोड़ा सा we have added water, then what we have added, iodine solution we have added, है ना. After some time what we will observe is
जो चीव्ड बॉइल्ड राइस था, ये वाला राइस था हमारा चीव्ड वाला, उसमें क्या हुआ था, सलाइवा ने क्या करा था, सलाइवा सिक्रीट सलाइवरी अमाइलेज, है ना, वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस वीडियो। क्या हुआ था, बॉइल्ड राइस कंटेन व्हाट, कार्बोहाइड्रेट, ये क्या करता है, इट कंटेन व्हाट, कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट माउथ में गया, सलाइवा विल एक्ट ऑन दिस कार्बोहाइड्रेट, तो सलाइवा कंटेन व्हाट, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा क्या कंटेन करता है, सलाइवरी अमाइलेज इज एन एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा कंटेन दिस सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, यह एक एंजाइम है। दिस एंजाइम विल ब्रेक दिस कार्बोहाइड्रेट, ये ब्रेक करेगा कार्बोहाइड्रेट इनटू व्हाट, सिंपल शुगर, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर, है ना, ये सिंपल शुगर में वो हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड कार्बोहाइड्रेट विल गेट ब्रोकन डाउन इनटू व्हाट, माल्टोज। दिस रिएक्शन वी हैव सीन इन द लास्ट वीडियो, ये ऐसा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन डाउन by the action of the salivary amylase and it have got converted into what, simple sugar, that is maltose. तो here जो chewed rice है इसमें no carbohydrate is there, no more carbohydrate is there because it is what, already been broken by salivary amylase. Salivary amylase ने क्या करा है, इसको already break करके it have got converted into what, simple sugar, that is maltose, है ना। तो chewed rice में carbohydrate नहीं है, starch नहीं है, carbohydrate is what, starch only, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट इज व्हाट, स्टार्च ओनली, तो स्टार्च, नो मोर स्टार्च इज प्रेजेंट इन द चीव्ड बॉइल्ड राइस, व्हाई, बिकॉज स्टार्च इज बीन ब्रोकन डाउन इनटू व्हाट, सिंपल शुगर, दैट इज माल्टोज। तो यहाँ पे आयोडीन विल नॉट शो एनी टेस्ट, एनी रिजल्ट, कुछ भी नहीं होगा इस वाले में, आयोडीन विल नॉट शो एनी रिएक्शन, है ना, क्योंकि क्या है, आयोडीन रिएक्ट विद व्हाट, स्टार्च, और स्टार्च इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, स्टार्च हैव बीन ब्रोकन डाउन इनटू माल्टोज बाय द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, है ना। तो दिस आयोडीन सोल्यूशन विल नॉट शो एनी रिएक्शन ओवर हियर, बट हियर इन द बॉइल्ड राइस कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट, स्टार्च इज प्रेजेंट, क्योंकि वो क्या है, ओनली बॉइल्ड राइस है ना। तो बॉइल्ड राइस के अंदर स्टार्च इज प्रेजेंट, सो आयोडीन विल एक्ट ऑन द स्टार्च एंड इट विल टर्न टू ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर, blue black color will appear here. Here no test will be there. आयोडीन सोल्यूशन ऐड किया, ऐसा का ऐसा ही रहेगा टेस्ट ट्यूब। यहाँ पर बॉइल्ड राइस था, मतलब स्टार्च वॉज प्रेजेंट, आयोडीन ने एक्ट करके क्या शो किया, ब्लू ब्लैक कलर, मीन्स यहाँ पर क्या है, स्टार्च इज प्रेजेंट इन टेस्ट ट्यूब ए, इन बॉइल्ड राइस स्टार्च इज प्रेजेंट, in chewed boiled rice no starch is present because it is already been broken down. So this is the test given in the book. Did you understood this test? ये रिएक्शन हमने इन द लास्ट वीडियो भी देखा था, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट इजीली, है ना। और इस तरीके से आयोडीन रिएक्ट्स विद व्हाट, स्टार्च, है ना, तो ब्लू ब्लैक कलर विल अपीयर। ओके, दिस वाज द टेस्ट। डिड यू अंडरस्टूड अप टू हियर? डिड यू हैव एनी डाउट? इफ यू हैव, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर, दिस इज द एंडिंग ऑफ द चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल, है ना। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर, let me know in the comment section. We will discuss in the next video. We will be starting the new chapter in the next video, and first we will discuss if you have any doubt. Okay, I think nobody should have doubt because it's very simple. If you understand it completely, if you focus and attend this session, then I'm sure everybody can understand because it's very simple and it's easy, not that much difficult. Only the thing is you need to focus completely. Hardly this session should be of 1 hour, 1.5 hours this session should be of, है ना। That too I have taken 2 parts, है ना, because otherwise the video will become very lengthy. I take in 2 parts. So only focus for that much time, you will be understanding everything. After listening to the video, just go through your books and I'm sure everybody will understand this chapter. After watching the video, first go through your book and 2-3 times if you will revise your book now, only just read it, you will be understanding everything. Okay, so this chapter is very much important for your next classes also. This was the basic of what, of the class 8, 9, 10. You should know these things, है ना। In the previous class what we have learned only about the digestive organ. This was the chemical reaction कैसे हुआ इसके अंदर, these things we have studied in this chapter, है ना। In further classes you will be learning the same chapter will be there in your further classes also, but only the thing is it will be in more detail. So first if you will understand these things, then only you can understand the other thing in details, na? Okay, so this was that, and one more thing was left, yes, types of teeth.
टाइप्स ऑफ टीथ, कितने टाइप के टीथ होते हैं हमारे, टीथ भी डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं. तो देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ टीथ, दैट इज व्हाट, इंसीसर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड लास्ट इज मोलार, है ना. दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ, है ना. उनके नंबरिंग क्या है, दिस इंसीजर आर 8 इन नंबर, 8 टीथ है इंसीजर. कैनाइन है 4, दिस इज अगेन 8, दिस इज प्रीमोलार, मोलार, दिस इज 12. इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार, उसके नंबरिंग ये है. 8 इंसीजर है, कैनाइन्स आर 4, प्रीमोलार वी हैव 8 प्रीमोलार एंड मोलार इज 12. ये अपर जॉ एंड लोअर जॉ दोनों को इंक्लूड करके दिस नंबर इज. अदरवाइज इफ यू विल सी ओनली सी द अपर जॉ, तो अपर जॉ में जो स्टार्टिंग के 4 टीथ रहते हैं दैट इज कॉल्ड इंसीसर. दैट इज व्हाट, दैट इज यूज फॉर व्हाट, दैट इज यूज फॉर बाइटिंग, बाइट करने के लिए यूज होते हैं इंसीसर. फ्रंट के टीथ से वी डोंट च्यू एनीथिंग, वी ओनली बाइट्स एनी समथिंग, तो दिस इज यूज ओनली फॉर बाइटिंग. कैनाइन इज यूज फॉर व्हाट, कैनाइन जो पीछे के, इंसीसर 4 फ्रंट के जो है वो इंसीसर है, उसके पीछे जो 2 टीथ है वो है कैनाइन. दैट इज यूज फॉर टियरिंग एनीथिंग, टू टियर समथिंग, इट दिस इज कैनाइन इज यूज्ड. देन प्रीमोलार एंड मोलार, लास्ट के जो 2 इस साइड के टीथ, 2 इस साइड के टीथ, दैट इज 4 एंड 4 टोटल हो गया 8 टीथ, है ना. दैट इज प्रीमोलार, दैट इज यूज फॉर चीविंग और ग्राइंडिंग. दिस मोलार ऑल्सो सेम, 3 इधर है, 3 यहाँ पर है ना. तो ऊपर 6 नीचे 6, तो टोटल इट्स 12, है ना. दैट इज ऑल्सो दिस बोथ द थिंग्स, प्रीमोलार एंड मोलार यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड चीविंग. दिस कैनाइन इज यूज फॉर टियरिंग समथिंग एंड दिस इज फॉर बाइटिंग. ओके, दिस इज हाउ द हमारे टीथ इस तरीके से डिवाइड है इनटू ये नेम्स. दीज आर द नेम्स ऑफ द टीथ एंड देयर फंक्शंस. What are the functions? Okay, so this is I think the completion of chapter. I think nothing is left more. So first revise this chapter and watch the video first and then go through the video your books, and then if you have any doubt ask me in the comment section. We will discuss it in the next video. Okay, bye.